माँ से बड़ा मानते हैं तो हम उसका पूजन करेंगे। इसलिए ये जो वृत्ति है गौ की वृत्ति, गौ यानी हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहे। गोमेध यानी इंद्रियों का यजन, इंद्रियों को यजन करिए। गौ माता की पूजा करने से आपको सब कुछ तरह का पुण्य मिलेगा। हमारे देश में अब गौशालाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हमने मोदी जी से बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, हमने उनसे कहा है कि गोवध बंद होना चाहिए, गौ माता कटना बंद होनी चाहिए किसी भी हालत में। हम सबका दर्द है ये, हम सबका अंदर की पीड़ा है। उन्होंने इस बात को 6 महीने का समय मांगा है और 6 महीने के समय के बाद वो कहते हैं कि हम गोवध बंद करा देंगे, आप चिंता मत करिए। मित्रों, सारा गायत्री परिवार उनके साथ खड़ा है और ये कहने के लिए तैयार है इससे कोई नुकसान होता हो तो आप चिंता मत करना। पर गौ माता का वध जहाँ होता है वहाँ हत्याएं होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं, भूकंप आते हैं, आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं। हमें गौ माता की हत्या रोकनी पड़ेगी और गोमांस खाने का वालों को बताना पड़ेगा कि आपको गोमांस नहीं खाना है। क्यों? ये भगवान है हमारे लिए। भगवान का कोई मांस खाता है? भगवान भगवती माता का कोई खाता है? हम नहीं करेंगे। பசு பூஜை, கோமாதாவின் பூஜை எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய ஒன்று. நம்முடைய மேல்நாட்டு கலாச்சாரத்தின் மூலமாக இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்னால நாம் இதெல்லாம் என்ன, பசு ஒரு தெய்வமா, அது ஒரு அனிமல், அது ஒரு விலங்கு தானே என்று கூறிக்கொள்கிறோம். பசுவிடம் எல்லா விதமான தெய்வங்களும் அங்கு குடிகொண்டிருக்கின்றன என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். பசுவானது உலக மாதாவாக கருதப்படுகிறது. பசு நமக்கு என்னவெல்லாம் கொடுக்கிறது, எல்லாவித செல்வங்களும் கொடுக்கின்றன. பசு கன்று ஈந்த பிறகு நமக்கு பால், பாலின் மூலம் தயிர், வெண்ணெய், நெய் போன்ற பல சிறப்பான குணங்கள் கொண்ட அந்த நமக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கொடுக்கின்றன. அந்த பசுவினுடைய பாலானது தாய்ப்பாலை விட சிறந்ததாக எல்லோரும் போற்றுகிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பசுவினுடைய சாணத்தின் மூலம், அதனுடைய கோமியத்தின் மூலம் நமக்கு பாக்டீரியாக்களை எதிர்க்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகிறது. அந்த கோமியத்தின் மூலம், கோபர் மூலம் நாம் பலவிதமான மருந்துகளை கிடைக்கின்றன. அந்த மருந்துகள் ஒவ்வொன்றும் நம்முடைய உடல் ரீதியான நோய்களை தீர்க்க வல்லது. பசு பூஜை செய்வதால் நமக்கு எல்லா வளமும், எல்லா பூஜையும் எல்லாமும் கிடைக்கின்றன. அந்த பூஜை செய்வதற்காக அவ்வாறு நல்ல விஷயங்களை தருகின்ற அந்த பசுவுக்கு நாம் உணவளிக்கிறோம். உணவளிக்கிறோம் என்பென்றால் நாம் நம்முடைய தாய்க்கு உணவளிப்பதை போல இந்திரியங்களை நமக்கு கட்டுப்படுத்தி தருகிறது. அப்படிப்பட்ட இந்த தேசம் உய்ய, இந்த தேசம் வளருவதற்கு நமக்கு இந்த பசு பூஜை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் நம்முடைய பிரதான் மந்திரி திரு நரேந்திர மோடி அவர்களிடமும் கூறியிருக்கிறேன். அவர் நிச்சயமாக 6 மாத இடைவெளி கேட்டிருக்கிறார். 6 மாத காலத்தில் நிச்சயமாக பசுக்களுக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அவர்களுக்கு பசு ஹத்யா நடைபெறாது என்பதற்கு அவர் உத்தரவாதம் கொடுத்துள்ளார். இங்கு நடைபெறுகின்ற தற்கொலைகள், கொலைகள், அனாச்சார் என்கின்ற கெட்ட நிலைகள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் நாம் பசு பூஜை செய்வதை நிறுத்திவிட்டோம். அந்த பசு பூஜை மீண்டும் செய்ய வேண்டும். அதற்கு நம்முடைய பிரதம மந்திரியும் அதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவதாக கூறியிருக்கிறார். அவரோடு சேர்ந்து நாமும் இந்த பசு பூஜை செய்வதன் மூலம் இந்த நாட்டினுடைய, பாரத நாட்டினுடைய பண்பாட்டை, கலாச்சாரத்தை உய்விக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். मित्रों, आप यहाँ से जब जाएं तो एक संकल्प लेके जाइएगा कि एक गाय का रक्षण करेंगे और एक गाय के संरक्षण के लिए जितना भी आवश्यक है उतना हम निकालेंगे। उसके लिए चारा जरूरी हो, चारा निकालेंगे और गौ माता के काम के द्वारा बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उनका उपयोग करेंगे। मैं करता हूँ, मैं उपयोग करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, बहुत सारा लाभ मिलेगा। हमारे बीच में हरिशंकर राजपुरोहित जी बैठे हैं। मैं कहूँगा कि वो खड़े हो जाएं, कम से कम सब लोग देख लें उनको। ये हरिशंकर राजपुरोहित जी खड़े हैं। हमने, और हरिशंकर राजपुरोहित जी पूरी तरह से गौ माता के समर्थक हैं। पथमेड़ा में हमने जा कर के साथ में गए थे। ये हमारे रात में हम 24 घंटे वहाँ रहे और वहाँ के जो स्वामी जी हैं दत्त दर्शनानंद जी महाराज, उनके साथ बैठ कर के प्लानिंग बनाई है पूरी की पूरी कि सारे देश में 20,000 गौशालाएं खड़ी करेंगे, सारे देश में 20,000। मित्रों, ये गौशाला का पूजन यानी अपने आत्म शक्तियों का पूजन, अपने आपके अंदर बैठे हुए भगवान की शक्तियों का पूजन। आप देखिए, आपको शुद्ध गौ दूध मिलेगा, शुद्ध गौ का घी मिलेगा, गौ का शुद्ध घी मिलेगा, गौ का मक्खन मिलेगा, पंचगव्य मिलेगा और आपको न जाने क्या क्या मिलेगा। सारी जितनी डॉक्टर के पास मेडिसिन है उसको एक तरफ रख दीजिए और इन मेडिसिन को एक तरफ रखिए। आपको पता चलेगा आपके लिए अमृत मौजूद है। अमृत लेकर आई है ये गौ माता। जाते जाते उस गौ माता को दर्शन करके जाइएगा, प्रणाम करके जाइएगा, तो आपको पता चले
कि इस गौ माता की रक्षा हमें करनी, एक गौ माता की रक्षा करनी है। एक एक आदमी एक एक गौ माता की रक्षा करने का व्रत ले ले तो 2000-3000 भाई जितने हमारे यहाँ आए हैं, 4000 भाई, सब 4000 गौ माताओं की रक्षा कर सकते हैं। आप एक एक का रक्षण का व्रत ले लीजिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। இன்று நாம் ஒரு சங்கல்பம், ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வோம். நாம் எல்லோரும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பசுவாவது வளர்க்க வேண்டும், ஒரு பசுவாவது நாம் காக்க வேண்டும். கோமாதா பூஜை என்பது, கோமாதாவை வளர்ப்பது என்பது, கௌசாலா வைத்து அமைப்பது என்பது நமக்கு ஆத்ம சக்தியை வழங்க வல்லது. இங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய சகோதரர் ஹரிசங்கர் ராய் என்பவர், அவர் தர்சனா மகா சுவாமிகளுடன் அமர்ந்து கொண்டு இந்த கௌசாலா அமைப்பதற்கான யோசனைகளை செய்து வந்துள்ளார். இதன் மூலம் நமக்கு பசு வளர்ப்பதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கின்ற அந்த பஞ்சகௌயம், கோமியம், கோபர் போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் மருந்துகளாக உட்கொள்ளும் போது நாம் டாக்டரிடம் செல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. எந்த ஒரு வேலை தொடங்கும் முன்னும் நாம் பசுவை பார்த்துவிட்டு சென்றால் அந்த வேலை நமக்கு நிச்சயமாக வெற்றி வாய்ப்பாக அமையும். நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பசுவை வளர்ப்பது என்று முயற்சி செய்தால் குறைந்தபட்சம் ஒரு 4000 பசுக்களாவது நாம் வளர்க்க முடியும். நாங்கள் எல்லோரும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் गायत्री माताவின் அருளால். आपने देखा होगा भगवान शंकर के सिर से एक धारा निकलती है, ये क्या है? सुरसरी गंगा। गंगा माता भी हमारे अंदर पवित्रता देती है, पवित्रता का भाव देती है। हम इस पवित्रता के भाव को जितना बढ़ाते हैं उतने अपने अंदर की गंगा का वर्धन करते हैं। गंगा हमारे अंदर है, सुषुम्ना नाड़ी के रूप में मौजूद है। इस गंगा की रक्षा करना हमारा फर्ज है। आज स्थूल गंगा को क्या हो रहा है मित्रों? आप तो कावेरी नदी का स्थिति देखिए कैसी हो गई है, प्रदूषण हो गया, पॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से सब नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी तो पानी मिलना बंद हो जाएगा। पानी अमृत है और अमृत पानी हमारी भावी पीढ़ियों के लिए नहीं रहेगा। एक छोटी सी बॉटल में भर के रखना पड़ेगा कि ऐसा पानी हुआ करता था कभी हमारे यहाँ, और पानी की बॉटल हम लोग पिएंगे आर्टिफिशियल वाटर की। मित्रों ऐसा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा? गंगा गंदी हो रही है, रोज़ गंदी हो रही है। गंगा का पूजन करते करते आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गंगा माता की हम रक्षा करेंगे, और गंगा माता की रक्षा करने के लिए शांति कुंज ने अभियान चलाया है। आने वाले 10 साल में 10 लाख कार्यकर्ताओं के द्वारा 5225 किलोमीटर तक की गंगा को पूरी तरह शुद्ध करना, उसकी ट्रिब्यूटरीज को शुद्ध करना, और उसको शुद्ध करने के लिए पूरी शक्ति लगा देना। इसको अभियान को बहुत सारे संगठनों का संरक्षण प्राप्त। जनवरी को मैं जाऊंगा गंगा सागर, और गंगा सागर से रथ को रवाना करूंगा जो वहाँ तक यात्रा करके गए हैं। 7 रथ हमारे वहाँ तक पहुँचे हैं निरीक्षण करते हुए। मित्रों गंगा को गायत्री परिवार शुद्ध कर सकता है और कोई शुद्ध नहीं कर सकता। वास्तव सही बात में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई कर सकता है तो दृढ़ उस रूप में कर सकता है। तो गंगा शुद्धि भी एक यज्ञ है। यज्ञ का एक स्वरूप, देव पूजन का एक स्वरूप, गंगा का पूजन का एक स्वरूप है। आप गंगा में कचरा मत करिए। फूल ले रहे हैं हाथ में, और फूल हाथ में लेकर के आप क्या करते हैं, आप उसकी उन्हीं फूलों को गंगा जी में डाल देते हैं, और उन्हीं फूलों को गंगा जी में डाल देते हैं। दीपक भी गंगा जी में डाल देते हैं, नारियल भी गंगा जी में डाल देते हैं। और हमारे यहाँ अजीब स्थिति है, हरिद्वार में अपने पहने हुए कपड़े भी गंगा जी में डाल देते हैं कि इसको डालने से पाप धुल जाएंगे। अरे ये क्या पागलपन है? वैज्ञानिक युग में रहते हो, साइंटिफिक एज में रहते हो, और तुम अपने कपड़े वहाँ डाल देते हो। गंगा और रुक जाती है, जगह जगह रुक जाती है, जगह जगह। हमको सफाई करते समय न जाने कितने कपड़े हमने निकाले, कम से कम कुछ नहीं तो 10,000, 15,000, 20,000 टन कपड़ा, गंदा कपड़ा वहाँ से निकला, जो आदमी अपना कपड़ा वहाँ छोड़ के नहाते समय। हद होती है। कोई घर में नहीं छोड़ सकते, किसी और को नहीं दे सकते अपने कपड़े। गंगा का पूजन का मतलब होता है गंगा की सफाई करेंगे, गंगा को पवित्र मानेंगे, गंगा को अपना माँ मानकर। गंगा माता है, गंगा माता कही गई है, और भारत में गंगा का पूजन किया जाता है। सब नदियों का पूजन किया जाता है, तो गंगा को सबसे बड़ा माना गया है, इसलिए हम उसकी रक्षा करेंगे। அடுத்ததாக நம்முடைய பாரத நாட்டினுடைய புனித நதியாம் கங்கை மாதா. நாம் கங்கை மாதாவை நாம் ரட்சிக்க வேண்டும், பாதுகாக்க வேண்டும். கங்கா மாதா நம்முடைய காயத்ரி பரிவாரின் மூலமாக சுமார் 10 லட்சம் வரைக்கும் மக்கள் இருந்து 200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நாம் கிட்டத்தட்ட சுத்தம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்துள்ளோம். கடந்த 1 வருடமாக இந்த இயக்கத்தில் நாம் கலந்து கொண்டு செய்து வருகிறோம். ஜனவரி 21ஆம் தேதி நாம் கங்கா சாகர் என்ற இடத்திலிருந்து கொண்டு இந்த காயத்ரி பரிவாரின் மூலமாக நாம் கங்கையை சுத்தம் செய்ய உள்ளோம். இந்த கங்கா சுத்தம் என்பது காயத்ரி பரிவார் செய்யாமல் வேற எந்த அமைப்பு செய்ய முடியும்? தேவ பூஜை போன்று நாம் செய்கின்றோம். கங்கையை நாம் சுத்தமாக வைத்திருப்பதே தெய்வத்துக்கு ஒப்பாக நாம் மதிப்பதாக கருத்து.
எல்லோரும் கங்கை மாதாவை வணங்குகிறோம் என்று சொல்லி பூக்களும் அந்த எல்லா பழங்களும் நாம் எல்லோரையும் விட்டு அது நாம் அந்த கங்கையில் போட்டுறோம். அந்த மாதிரி கங்கையில் போடுறப்போ முழுக்க முழுக்க அது அசுத்தமாகி விடுகிறது. சிலர் பாவங்கள் தொலைய வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய ஆடையை கலட்டி எறிந்து அந்த உடையை அந்த கங்கையில் போட்டு விடுகிறார்கள். நாம் கங்கையை சுத்தம் செய்யும் போது காண்கிறோம் எத்தனை விலை உயர்ந்த ஆடைகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றன. இதையெல்லாம் ஏன் விட்டு செல்ல வேண்டும்? நாம் கங்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அதை சுத்தம் பண்ண வேண்டும், சுத்தம் செய்ய வேண்டும். சுத்தமாக செய்தாலே நாம் கங்கையை பூஜிக்கிறோம் என்று அர்த்தம். மலர்களை கொண்டு தூவுவதனாலோ அல்லது நாம் தரித்து கொண்டிருந்த இந்த விலை உயர்ந்த ஆடைகளை எறிவதனாலோ நமக்கு நிச்சயமாக நம்முடைய பாவங்கள் தொலையாது. அதே ஒரு பாவம் தான். ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும்? நாம் இந்த கங்கா மாதாவை அமைக்கவில்லை என்றால் இன்னும் சிறிது நாட்களில் நமக்கு தண்ணீர் கஷ்டம் மிகவும் ஏற்பட்டுவிடும். நமக்கு தண்ணீர் என்பது ஒரு அமிர்தம் போன்றது. நாம் குடிக்கக்கூடிய ஒரு அமிர்தம். நமக்கு இயற்கை வழங்கியுள்ள அந்த அமிர்தத்தை நாம் மாசுபடுத்தலாமா? நாம் மாசுபடுத்தக்கூடாது. அப்படி மாசுபடுத்தும் பொழுது தண்ணீரே நமக்கு கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகும். எல்லோரும் தண்ணியை பாட்டிலில் வாங்கிடுறோம். அந்த பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டிலை நாம் தூக்கி அந்த கங்கையிலேயே எரிஞ்சிடுறோம். இது எவ்வளவு பெரிய பாவம்! இந்த பாவத்தை செய்யாமல் இருக்க நாம் எல்லோரும் கங்கையை புனிதப்படுத்த வேண்டும், சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு இயக்கத்தோடு சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்வோமாக. मैंने आपको कहा था यज्ञ के 3 अर्थ हैं: दान, देव पूजन, संगतिकरण। दान हो गया, देव पूजन हो गया, संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त है, ये ऋग्वेद में है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। एक साथ चलो, एक साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, एक साथ वदध्वम मतलब उनको वर्धन करो, उनका अभिवर्धन करो, और सबके मन एक साथ चले। हिंदुस्तान में हम हिंदू एक साथ नहीं चलते। 4 हिंदू तब एक साथ चलते हैं जब 5वां हिंदू सिर पे होता है। समझ में आया कि नहीं आपको? जब शव यात्रा निकलती है तो 5वां हिंदू ऊपर होता है, तब 4 हिंदू चलते, नहीं तो घर से निकलते नहीं एक साथ। ये हम माइनॉरिटी में चले गए। माइनॉरिटी में नहीं जाना है हमको, हमको मेजॉरिटी में चलना है। तो मेजॉरिटी में कैसे चलेंगे? अच्छे हिंदू बनकर। हिंदू कौन होता है? जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है। वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर हम जिस हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं उसमें साथ साथ चलना है, साथ साथ चले। धियो यो न प्रचोदयात्, अग्ने नये सुपथाराय। ये सारे मंत्र एक बात बताते हैं, श्रेष्ठ कामों के लिए साथ साथ चलना। यज्ञ क्या है? संगतिकरण। साथ साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठ के हम दीपक जलाएंगे, ये यज्ञ है। आपने सुबह यज्ञ किया था, यज्ञ के लिए इतना सारा तैयारी की थी। अगर इतने सारे लोग नहीं होते, समिधाएं नहीं होती, हवन सामग्री न इकट्ठी हुई होती, इतना बड़ा आपका सामियाना न तना होता, तो आप यज्ञ नहीं कर पाते। आपको यज्ञ करने के लिए ढेर सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, सबका साथ साथ चलना जरूरी होता है। इसलिए यज्ञ को कहा गया है कि संवेद प्रक्रिया है, साथ साथ चलने वाली सज्जनों का संगतिकरण। सज्जनों का संगतिकरण हो जाएगा, उस दिन देश में सतयुग आ जाएगा। मित्रों, सतयुग न आने में इसीलिए देरी हो रही है कि सज्जन इकट्ठे नहीं हो पा रहे। सज्जनों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, दुर्गा शक्ति का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। தானம், தேவ பூஜன், இந்த இரண்டும் முடித்த பிறகு நாம் இன்னொன்றை நம்மிடம் ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும். ரிக்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒன்று கூடி செல். நாம் எப்பொழுதும் ஒன்று கூடி செல்லும் பொழுதுதான் அந்த ஒற்றுமை தான் நமக்கு பலமுள்ளதாக இருக்கும். இந்துக்கள் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒற்றுமையுடன் இல்லை. சில இந்துக்கள் தமிழர் என்றும், சில இந்துக்கள் இன்னொரு மொழி என்றும் நாம் நமக்குள்ளேயே பிரிவினையை உண்டாக்கி விட்டு கொண்டோம். நல்ல இந்து என்பவன் யார்? அவன் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும், கிறிஸ்தவனாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் என்ன, ஒன்று சேர்ந்து செல்லும் பொழுது, தங்களுடைய இலக்கை நோக்கி நாம் செல்லும் போது அவன்தான் உண்மையான இந்துவாக சொல்லுகிறான். யஜ்ஞத்தின் மூலம் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். இங்கே பலவிதமான சாமகிரிகள், எல்லா நெய் போன்ற பலவித ஆகுதிகளும் நமக்கு இருக்கின்றன. இருந்த போதும் என்ன செய்ய? நாங்கள் எல்லோரும் இங்கு ஒன்று கூடவில்லை என்றால் இந்த பெரிய யாகத்தை எப்படி செய்துவிட முடியும்? எப்பொழுது ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு எல்லா விதமான நல்ல குணங்களும் உண்ட அந்த சஜ்ஜனங்கள், அதாவது மேன்மக்கள், ஜென்டில்மேன்ஸ் நமக்கு தேவை. அதே மாதிரி துர்கா சக்தி மகளிர்களாகிய உங்களுடைய துர்கா சக்தி இவர்களும் வேண்டும். இவ்வாறெல்லாம் எல்லோரும் இருந்தபோதுதான் இந்த யஜ்ஞம் என்பது நல்ல முறையில் நடைபெற ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். यज्ञ कई प्रकार के होते हैं भाइयों बहनों। आपने सुबह किया, कुंड में यज्ञ किया, ऐसे हाथ में हवन सामग्री ली और नीचे डाली। ऐसे कैसे कैसे किसको खिलाते हैं? बच्चे को माँ खिलाती है।
भगवान है साक्षात। यज्ञम उ देवानाम अन्न, यज्ञ देवताओं का अन्न है, उस अन्न को हमें खिलाना है। किनको? यज्ञ भगवान को। तो हम उस तरह से भोजन कराते हैं। कुंडी यज्ञ में अभी जो यज्ञ करने जा रहे हैं वो दीप यज्ञ है। हम सब बैठे, हम सब के बीच में दीपक जलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि हम सब भावनाशीलों की आहुति इन दीपों में पड़े। दीपों में दीपक जल रहे हैं, बाती जल रही है, पात्रता है, कैपेसिटी है, उसमें घी डला हुआ है, तेल डला हुआ है, और जो बाती है वह हमारी प्रखरता है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ वर्क, इंटेंसिटी ऑफ आवर लेबर, आवर एंडेवर इज प्रखरता, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जब ऊंचा उठने के लिए तैयार होगी तो दीपक जलेगा। इसलिए आग, घी और पात्रता, ये तीनों मिला के दीप यज्ञ, सामूहिक दीप यज्ञ। समूह जब करता है तो फिर कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकता है, अपने जगह पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसे दीप यज्ञ का महत्व गुरुदेव ने बहुत बताया है आध्यात्मिक परिशोधन के लिए। क्लींजिंग द एटमॉस्फेयर, आपका जो वातावरण विक्षुब्ध हो गया है, गंदा हो गया है, इसको ठीक करना है। ये स्थूल प्रदूषण की बात नहीं कर रहा हूँ, सूक्ष्म प्रदूषण, दुराचार, अपराध, भ्रष्टाचार, दुनिया भर के कितने तरह के आप देख सकते हैं गंदी चीज़ें हो रही हैं समाज में। इन सब को मिटाने के लिए यज्ञों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसलिए दीप यज्ञ अभी हम करेंगे। इसके साथ साथ एक हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इस साल 2016 में जो हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं अश्वमेध गायत्री महायज्ञ 28 से 31 जनवरी 2016। ये जो आप देख रहे हैं इसको अनवील कर रहे हैं हम। ये कोयम्बटूर में जो बेंगलोर में हमारा हुआ था इस साल 2014 में, उसके बाद 41st होगा हमारा बीरगंज में नेपाल में, 42nd हमारा होगा कन्याकुमारी में। आप सबको सागर तट पे इनवाइट करते हैं। कभी भगवान राम लेके गए थे रीछ वानरों को, इस बार हम आपको लेके चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए और वहाँ बैठ के अपन लोग एक साथ बैठ के यज्ञ करेंगे, अश्वमेध महायज्ञ। இன்று காலை நாம் எல்லோரும் யஜ்ஞ குண்டத்தில் நாம் யஜ்ஞம் செய்தோம். யஜ்ஞம் செய்யும் போது நாம் என்ன செய்தோம்? குழந்தைக்கு ஒரு தாய் உணவு ஊட்டுவதைப் போல நாம் எல்லோரும் அந்த யஜ்ஞத்தில் சாமகிரிகளை அழைத்தோம். யாகம் என்பது, யஜ்ஞம் என்பது தெய்வத்திற்கு நாம் வழங்கும் ஒரு உணவாகும். இப்போது தீப ஒளி ஏற்று அந்த தீப யஜ்ஞம் செய்ய போகிறோம். தீப யஜ்ஞம் செய்யும் போது அந்த சிட்டியில் திரி உள்ளது, எண்ணெய் உள்ளது, நெய் உள்ளது. இப்படிப்பட்ட இந்த இதன் மூலம் நாம் நம்முடைய உள்ளுணர்வை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். உள்ளுணர்வு என்பது இன்டென்சிட்டிவ். அந்த இன்டென்சிட்டிவ்ங்கிறது நமக்கு மேலோங்கி நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உள்ளுணர்வுடன் இந்த தீப ஒளியை நாம் இருக்கிறோம். நம்முடைய குருநாதர் திரு ராம் சர்மா ஆச்சாரியஜி அவர்கள் தீப யஜ்ஞத்தை பற்றி பல விஷயங்களை எடுத்து கூறியிருக்கிறார். நம்மிடையே உள்ள அந்த ஊழல், லஞ்சங்கள் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் எடுப்பதற்கு நீக்குவதற்கு நமக்கு இந்த தீப யஜ்ஞம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதேபோல் நாம் இந்த அஸ்வமேத யாகம் என்பது கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் 21வது அஸ்வமேத யாகம் நடத்தினோம். அடுத்ததாக 2016 ஜனவரி மாதம் இந்த 22வது அஸ்வமேத யாகம் கன்னியாகுமரியில் நடக்க உள்ளது. அந்த கன்னியாகுமரியில் நடக்கின்ற இந்த அஸ்வமேத யாகத்தில் தாங்கள் எல்லோரும் வந்திருந்து கலந்திருந்து அதை மேலும் சிறப்பிக்க வேண்டுமாய் உங்கள் எல்லோரையும் நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். लास्टली मित्रों, यज्ञ से हम क्या सीखते हैं? यज्ञ से हम सीखते हैं प्यार बांटना, दूसरों को स्नेह देना, गुणों को अपने अंदर बढ़ाना, और यज्ञ की अग्नि की जैसे हमेशा ऊपर तरफ चलती है, हम भी ऊपर चलेंगे. पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज कीपिंग आवर इंटेंशंस वेरी क्लियर. पूरा हम हमेशा ऊंचा सोचेंगे, हम ऊपर की तरफ चलेंगे. कभी आपने देखा ऊपर की तरफ जाने वाली लौ फ्लेम नीचे गई उलट करके यू टर्न लेती है? नहीं लेती. ऐसे हम भी कभी ऐसे यू टर्न नहीं लेंगे, हम हमेशा ऊपर की ओर चलेंगे, हमेशा प्रकाशवान रहेंगे, हमेशा प्रकाशित रहेंगे, हमेशा पास वाले को भी गर्म बनाएंगे, प्रकाशवान बनाएंगे. मैं जैसे बैठा हूँ, मैं प्रकाश से भरा हुआ हूँ, तो गौड़ जी भाई साहब और हमारे भाई साहब ये भी मेरे साथ साथ प्रकाशवान होंगे. जो यज्ञ की अग्नि के आसपास रहेगा वही प्रकाशवान होगा. हम भी प्रकाशवान बनेंगे, हम अपने गुणों को दूसरों को फैलाएंगे, हम अपनी सुगंधी, अपने गुणों की सुगंधी सारे वातावरण में फैलाएंगे. ये यज्ञ की शिक्षा है. इस यज्ञ की शिक्षा को आप अपने साथ बांध करके ले जाइए और जीवन में यज्ञ करना चालू कर दीजिए. उस यज्ञ का मतलब क्या होता है एक छोटा सा गीत से हम सुनाएंगे. उसके पहले अभी अनुवाद सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको हमारे ओंकार जी एक छोटा सा गीत सुनाएंगे कि जीवन यज्ञ है, जीवन यज्ञ है.
और जीवन यज्ञ में सब चीज़ें एक साथ हमारे जीवन में घटती हैं। सुबह उठने से लेके खाना पीना करने से लेके कॉफ़ी पीना, प्रज्ञा पेय पीना, चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, शाम तक आप जो काम करते हैं रात तक सोने तक, वो सब यज्ञ है, पूरा यज्ञ है। उसको पावन बना दीजिए, पुनीत बना दीजिए और जीवन यज्ञ को इतना व्यवस्थित बना दीजिए कि आपका जीवन सुगंध से भर जाए, पूरा ऐसा सुवासित होने लगे कि लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे और कहेंगे वो यज्ञ के बारे में बोलता नहीं है, यज्ञ के बारे में करता ही नहीं है, बल्कि यज्ञ उसके जीवन से बोलता है, कण कण से बोलता है, ऐसा बोलने लगे। அடுத்ததாக யஜ்ஞத்தின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் அன்பு, நற்குணம், நல்ல ஒரு சேவை. இந்த மூன்று குணங்களும் நமக்கு மேலோங்கி இருக்க வேண்டும். எப்படி தீபம் மேலோங்கி நமக்கு மேல் நோக்கி அது எரிகிறதோ அதுபோல நம்முடைய எண்ணங்களும் மேல் நோக்கி செல்ல வேண்டும். நாம் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் என்கின்ற அந்த சுய எண்ணம் இருக்கக்கூடாது, பொதுநல எண்ணம் இருக்க வேண்டும். நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து மேலோங்கி வர வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும். நம்முடன் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் முன்னேற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வேண்டும். எப்படி நறுமணம் கொண்ட ஒரு பொருள் எல்லோரும் நுகர்வதற்கு அந்த நறுமணத்தை தருகிறதோ அதை போல நாம் செய்கின்ற இந்த யாகத்தின் மூலம் எல்லோரும் நலம் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். இந்த யஜ்ஞம் என்பது ஜீவனே, ஒரு வாழ்க்கையே நமக்கு ஒரு யாகம் போன்றதுதான். காலையில் நாம் எழுந்ததிலிருந்து பல் துலக்கி அதை நாம் டீ சாப்பிட்டு, காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு, மத்தியானம் உணவு அருந்தி, மாலை டீ சாப்பிட்டு செய்கின்ற வேலைகள் ஒவ்வொன்றும் இரவில் தூங்க செல்லும் வரை நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் யாகத்திற்கு ஒப்பானது, அந்த யஜ்ஞத்திற்கு ஒப்பானது. அப்படிப்பட்ட அந்த யாகத்தை பவர்ஃபுல்லாக, நல்ல வலிமை மிக்கதாக ஆக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம் கையில் தான் இருக்கிறது. இப்பொழுது ஆச்சாரியர்கள் அவர்கள் தீப யஜ்ஞத்தை பற்றி சொன்ன பிறகு ஒரு சிறிய பாட்டு பாடுவார்கள். பாட்டு பாடி முடித்த பிறகு அவர்கள் சொன்னபடி நீங்கள் எல்லோரும் தீப யஜ்ஞத்தை தொடர்ந்து செய்திட வேண்டும் என்று உங்களை நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். हमको उम्मीद है कि आपने जो कुछ सुना उसको जीवन में उतारेंगे और जीवन में उतार करके आप भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे. आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इससे भी बढ़िया बनने की संभावना है. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest that divinity within or out by many means, work or worship or reading the good books. बहुत सारे तरीके हैं आपको अच्छा बनने के. बस आप अच्छे बन जाइए और यज्ञमय जीवन जीना शुरू कर दीजिए. यज्ञमय जीवन का गीत हमारे भाई आरंभ कर रहे हैं. हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए. अगर आपका जीवन यज्ञमय हो गया, हमारा यहाँ तक आना सार्थक हो जाएगा, आपका यज्ञ करना सार्थक हो जाएगा. நீங்கள் எல்லோரும் மிகவும் நல்லவர்களே. நீங்கள் நல்லவர்களாகிய மட்டும் இருந்தால் போதாது, இந்த சமுதாயம், இந்த நாடு முன்னேற வேண்டும். இப்பொழுது அதற்கான यज्ञ तक की सारी रूपरेखा आपको बताई. आइए इस जीवन यज्ञ को सुने. यह दीपक हमें कुछ कहता है. किसी गिरते हुए को जरा उठाकर देखो, किसी गिरते हुए को जरा उठाकर देखो, किसी भटके को सही राह पर लाकर देखो. गलियों और चौराहों को बहुत रोशन किया हमने, आओ चलें किसी अंधेरे दिल में एक दिया जलाकर देखो. और ये अंधेरे दिलों में सदैव डॉक्टर साहब ने वो दिया जलाया है. आइए जीवन को हम प्रकाशमय बनाएं. हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए. हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर. सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम. शक्ति वह भर दीजिए. हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए. हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए.
अभिनव उजाला। यज्ञ कुंडों से सजे हो ये सभी भूखंड सुंदर। ये सभी भूखंड संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट, जिनमें प्रखर हर संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट, जिनमें प्रकट भावना मंगल कलश सी, भावना मंगल कलश सी शांति सुख कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले, सफल पूर्णाहुति वही है। लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले, सफल पूर्णा मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि क्रम रही है। आरती ऐसी करें परमार्थ हो जगमग जगत में। आरती ऐसी करें परमार्थ हो, शंख सी गूंजे विजय में ध्वनि हमारे पुण्य पथ में। युग नया रच दे, युग नया रच दे यही, युग नया रच दे यही संकल्प दृढ़ कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वह भर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। प्रभु यज्ञमय कर दीजिए, प्रभु यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हम सब यज्ञ जीवन जिएंगे तो राष्ट्र, समाज, विश्व फिर से परिवर्तित हो जाएगा और इसी धरती पर हम सब मिलकर के स्वर्ग लाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम सब कन्याकुमारी में अश्वमेध महायज्ञ की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब संकल्प लेकर के जाएं कि आप 10 मिनट रोज उसकी सफलता के लिए गायत्री जप करेंगे। 1 मुट्ठी अन्न निकालेंगे, 1 रुपया रोज निकालेंगे। हमारे अमेरिका से, इंग्लैंड से 2 चार्टर्ड विमान उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। साउथ जोन के भाई बहन हार्दिक सबका स्वागत करेंगे और उस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे।
हमारे कालीकट के श्रेष्ठाचार सभा के भाई बहनों ने उस यज्ञ के लिए 25 लाख रुपए का संकल्प लिया है। विश्वनाथ जी उसके वो अध्यक्ष हैं। एर्नाकुलम के भाइयों ने 11 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। त्रिवेंद्रम के भाइयों ने 11 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। चेन्नई के भाइयों ने 11 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। एक एक रुपया भी हम देंगे तो हमारा यज्ञ बहुत शानदार होगा। उस यज्ञ में आप सब आमंत्रित हैं। आप सब साउथ के भाई बहन अधिक से अधिक हमारे तमिलनाडु के भाई बहनों को लेकर के आए, मलयाली के भाइयों को लेकर के आए। विशेषकर मुनि को गायत्री मंत्र का संदेश देना चाहते हैं। आपसे हमारा भाव भरा आमंत्रण है, निवेदन है। हे भगवान, நாம் எல்லோரும் இந்த தீப யஜ்ஞம் செய்கின்றோம். இந்த தீப யஜ்ஞத்தின் மூலம் நாம் எல்லோரும் நலம் பெற வேண்டும் என்று அந்த ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நாம் இந்த தீப யஜ்ஞத்தை இப்பொழுது தொடங்குவோம். அஸ்வமேத யாகத்திற்காக நாம் எல்லோரும் சங்கல்பம் எடுத்துக்கொள்வோம். இங்கிலாந்திலிருந்து பல ஒரு குழுவினர்கள் இந்த அஸ்வமேத யாகத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக வரவுள்ளார்கள். அவர்கள் எல்லோரையும் வரவேற்பதற்காக தாங்கள் எல்லோரும் அங்கிருந்து நம்முடைய பாரத நாட்டின் மூலம் அவர்களை வரவேற்க வேண்டும். பலரும் லட்சக்கணக்கான தொகைகளை இந்த அஸ்வமேத யாகத்திற்காக வழங்கி வருகிறார்கள். மலையாளம், தமிழ் மற்றும் எல்லா மொழி நாடுகளிலிருந்தும் எல்லோரும் வந்திருந்து இந்த அஸ்வமேத யாகத்தை மிக சிறப்பாக நடத்திவிட வேண்டும் என்று சொல்லி இப்பொழுது இந்த தீப யஜ்ஞத்தை தொடங்குகிறோம். अभी आपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब से गौ माता के पूजन के बारे में सुना। यहाँ पर पतमेड़ा का स्टॉल गौ प्रोडक्ट का, गौ उत्पादन का लगा हुआ है। आप वहां से कुछ न कुछ लेकर के जाएं, ये आपसे प्रार्थना है। பத்மடா என்கிறது கோசாலா ஒன்று உள்ளது. எல்லோரும் அங்கு செல்லலாம். அதற்குரிய பேம்லெட் இங்கே இருக்கிறது, எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம். बोलिए यज्ञ भगवान की। सभी देव शक्तियों का हमने आवाहन किया, नमन बंदन किया। अब उन शक्तियों के अंतर निहित परमात्मा चेतना की साकार प्रतिमा गुरु होती है। भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ें, गुरु चरणों का ध्यान करें। परम पूज्य गुरुदेव की चरण पादुकाएं देव मंच पर स्थापित हैं। पूजन करते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं। कांताबेन पटेल मंच पर आ जाएं गुरुदेव का पूजन करने के लिए। இப்பொழுது நாம் நேராக அமர்ந்து கொண்டு குருவை நினைத்துக் கொண்டு குருவின் சரணங்களில் நாம் தீப யஜ்ஞத்தை தொடங்குகிறோம் என்று அந்த பாவனையோடு இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे
अग्नि स्थापनम। अब जो बहनें भाई पहले से नियुक्त हैं दीपक प्रज्वलित करने के लिए, वो बहनें दूर वाले दीपक को पहले जलाएंगी, पास वाले दीपक को बाद में जलाएंगे। இப்பொழுது தீப யஜ்ஞம் தொடங்குகிறது. முதலில் மேடையில் நாம் தீப யஜ்ஞம் தொடங்கிய பிறகு மற்றவர்கள் எல்லோரும் அங்கு பக்கத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் நீங்கள் தீப யஜ்ஞம் பொருத்துவதற்கு கேட்டுக்கொள்கிறோம். साड़ी, दुपट्टा और मंत्र चादर जो भाई गले में डाले हैं, जो जला रहे हैं, सावधानी पूर्वक दूर वाला दीपक बाद में जलाएंगे। पहले यहाँ श्रद्धे पूज्य डॉक्टर साहब यहाँ दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उसी के साथ दीपक जलाएं। ओम अग्निनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। दीप देवता की स्तुति का गान होगा। श्रद्धा पूर्वक दीपक जला करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। தீபத்தை ஏற்றும் பொழுது தங்களுடைய சேலை, துப்பட்டா மற்ற எதுவும் படாமல் பத்திரமாக தீபம் ஏற்றும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் நடந்துவிடக்கூடாது. அதில் கவனமாக இருந்து சிரத்தையோடு இந்த தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும். எல்லோரும் கவனமாக இருக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக தமிழ் அகண்ட ஜோதி தமிழ் பத்திரிகா என்பது வருடத்திற்கு 100 ரூபாய் மட்டுமே. ஒரு மாதத்திற்கு என்றால் 8 ரூபாய் தான். 8 ரூபாய் என்பது ஒரு நாளைக்கு என்பது 20 பைசா தான். எனவே நீங்கள் இந்த அகண்ட ஜோதி பத்திரிகாவில் உறுப்பினராக சேர்ந்து 100 ரூபாய் சந்தா கட்டும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சாகித்யம் முடிந்த பிறகு இந்த புக் ஸ்டால்ல இருக்கின்ற दीपक जलाकर बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। யஜ்ஞ பிரசாதமும் வாங்கி கொண்டு செல்லவும். வருகின்ற 2015 மே மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் 9ஆம் தேதி வரை ஹரித்வார் சாந்தி குஞ்சில் தமிழர்களுக்கான ஒரு சிபிர் நடைபெற உள்ளது. स्तुति हाँ। जन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं ते प्रमदादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातुमान्तत्सवितुर्वरेण्यं। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। जन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं मानवमुक्तिकोविदं। तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। जन्मण्डलं ब्रह्मगतस्य विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम्। सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता। शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना
सविता यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति अचारणसिद्धसङ्गा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता यन्मण्डलं वेदविदोपनीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। बोलिए यज्ञ भगवान की सभी लोग बैठ जाएंगे सभी बैठ जाएं। அவர்கள் எல்லோரும் அந்தந்த இடத்திலேயே அமரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லோரும் அவரவர்களிடத்தில் அமைதியாக அமர்ந்தால் இந்த தீப பிரகாசம் மிக அழகாக தெரியும். மேடையிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கும் அருகிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக எல்லோரும் தீபம் ஏற்றியவர் அந்தந்த இடத்திலேயே அமரவும். உங்களுடைய துப்பட்டா சேலைகள் பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளவும். எந்தவித அசம்பாவிதமும் நடந்துவிட வேண்டாம். दयவு செய்து எல்லோரும் அந்தந்த இடத்திலேயே அமரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். बैठ जाएं सभी। जो बहनें बीच में खड़ी हैं वो भी बैठ जाइए। व्यवस्थित होकर के सभी बैठेंगे और भावनात्मक आहुतियां भगवान को अर्पित करेंगे। सबके उज्जवल भविष्य की कामना, सबके श्रेष्ठ पथ पर चलने की प्रार्थना गायत्री महामंत्र में ऋषियों ने प्रदान की है कि हे परमात्मा सबका भविष्य उज्जवल बने, सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। इस मंगल भाव से यह महायज्ञ संपन्न किया जाएगा, ऐसी प्रार्थना की जा रही। सभी लोग बैठ जाएं। எல்லோரும் அமைதியாக அந்தந்த இடத்திலே அமர்ந்து கொண்டு நாம் காயத்ரி பூஜை செய்கின்றோம், இந்த தீப யஜ்ஞம் செய்கின்றோம் என்பதை மனப்பூர்வமாக நினைத்துக் கொண்டு நாம் எல்லோரும் நல்ல முறையில் தெய்வீக சிந்தனையோடு உள்ளுணர்வோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். அதற்காக அந்தந்த இடத்திலே அமர்ந்து எல்லோரும் அவரவர்களுடைய ஆடைகளை பத்திரமாக பார்த்து கொண்டு எந்தவித அசம்பாவிதமும் நடந்து விடாமல் பார்த்து கொள்ளும்படி மிக அன்புடனும் தாழ்மையுடனும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். बैठ जाएं। गायत्री महामंत्र से आहुतियां प्रदान करेंगे। सभी बैठ जाएं। बीच में जो खड़े हैं आप सभी बैठें, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। நிற்கிறவர்கள் எல்லோரும் அமரவும். எல்லோரும் நேராக உட்கார்ந்து கொண்டு இப்பொழுது காயத்ரி மந்திரம் ஜபிக்கப்படுகிறது. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुति भगवान रामेश्वरम के दिव्य स्थान में साउथ में भगवान शिव के नगर में बैठ करके उनकी अभ्यर्थना करेंगे और वंदना करेंगे जय महाकाल का शंख निनाद करते हुए भगवान के कीर्तन में ताली बजा करके सब सहयोग करेंगे भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक सावधानी आपको रखना है दीपक आपके पास में प्रज्वलित है बहने भावना में ना रहें श्रद्धा पूर्वक दीपक को देखते रहें और ताली बजाते रहें அடுத்ததாக மகாமிருத்யுஞ்சய மந்திரம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள சிவபெருமானை நினைத்துக் கொண்டு நாம் எல்லோரும் இந்த மகாகால் அவர்களை இப்பொழுது நாம் நினைத்துக் கொள்ள போகிறோம் பாவனையோடு அதை செய்ய வேண்டும் பாடல் பாடும்போது எல்லோரும் தாளம் தட்டும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் முக்கியமாக எல்லோரும் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி மிகவும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் जो जहां बैठे हैं खड़े हैं दोनों हाथ इस तरह से ऊपर उठाएं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का ध्यान करें रामेश्वर भगवान का ध्यान करें और जोर से जय घोष करेंगे बोलो शंकर भगवान की जय युगाधिपति महाकाल की जय बोलो रामेश्वर भगवान की जय ताल के साथ ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे जय महाकाल 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 जय हरता है ताप का हरता है जो युग परिवर्तन करता है जो युग परिवर्तन करता है आदि शक्ति को साथ लिए 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 जो बदल रहा है सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल बदल रहा है सृष्टि चाल जय महाकाल 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 तुम हो अनादि तुम हो अनंत हो अनादि तुम हो अनंत तुमसे प्रेरित यह दिग दिगंत से प्रेरित यह दिग दिगंत परिवर्तन के आधार तुम्ही परिवर्तन के आधार तुम्ही परिवर्तन के आधार तुम्ही परिवर्तन के आधार तुम्ही
तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल। तुमसे प्रेरित यह जग विशाल। जय महाकाल 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 जय। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाइए और उठाइए। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। रामेश्वर भगवान की जय। इस महायज्ञ में जिनने भी भागीदारी किया, तन से, मन से, धन से, श्रम से, सहयोग से आए, नहीं आए, उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना प्रार्थना करते हुए भगवान को यह आहुतियां समर्पित हैं। இந்த யஜ்ஞத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள், வந்தவர்கள், வராதவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த உடல் பொருள் ஆவி மூலமாக நாம் எல்லோரும் கலந்து கொண்டோம். அவர்கள் எல்லோருக்கும் இப்பொழுது அடுத்த ஒரு பாடல். ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। मंगल आरती होगी, कन्याएं आरती करेंगी। पूर्णाहुति के बाद आरती का क्रम होगा। अभी पूर्णाहुति में एक संकल्प करना है मन में, जो अभी पूज्य डॉक्टर साहब ने यज्ञ का महत्व समझाया। कन्याकुमारी में अश्वमेध महायज्ञ है, उसके निमित्त हम अपने श्रम से, प्रतिभा और योग्यता के माध्यम से कितना सहयोग कर सकते हैं, ये मन में संकल्प लेकर के ये भगवान के चरणों में पूर्णाहुति अर्पित करेंगे। मन में संकल्प करें, भगवान आपका संकल्प पूर्ण करें, ऐसी मंगल प्रार्थना। நாம் இப்பொழுது பூர்ணாகுதி கொடுக்க உள்ளோம். அஸ்வமேத யாகத்தில் நாம் எல்லோரும் நம்மால் இயன்ற எல்லா விதமான உதவிகளும் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு, மனதில் வேண்டிக்கொண்டு இப்பொழுது நாம் பூர்ணாகுதி பாடல் பாடுகிறோம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। नीराजनम आरती, वैदिक मंत्रों से
आरती की जाएगी। भाव श्रद्धा से सभी आरती में सहयोग करेंगे। संभव हो तो कुंड में जो बैठे हैं दीपक ऐसे उतार करके आरती करेंगे। எல்லோரும் இந்த தீப யஜ்ஞத்திற்கு தீப ஆரத்தி காண்பிக்க வேண்டும். இங்கே வைதிக மந்திரங்கள் சொல்லப்படும். அங்கங்க அமர்ந்து கொண்டு அப்படியே கை அந்த பாவத்தோடு அதை தீபம் காட்டும்படி அனைவரிடமும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ओम के आकार में आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मावरेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपराक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरात्रिक्यं समर्पयामि। आरती उधर दिखा दें, सभी लोग हाथ ऊपर कर लें। गायत्री मंत्रों की स्तुति करते हुए आरती लें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। நன்காக கைகளை தேய்த்துக் கொண்டு தங்களுடைய கண்கள், தங்களுடைய கன்னங்கள், தங்களுடைய உடல் முழுவதும் அதை தேய்த்துக் கொள்ளும்படி தலை முதல் பாதம் வரை தேய்த்துக் கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். मित्रों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए, हमारे अपने हैं, पर जब कहीं महापुरुष उपस्थित होते हैं तो हवाएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं, ये उनकी पहचान होती है। डॉक्टर साहब आए तो सबकी आंखें भराई, हृदय भराया, प्रेम से सब लबालब हो गए। ज्ञान की अमृत वर्षा हुई। जितना समय उन्होंने दिया हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विशेषकर दक्षिण के कार्यक्रमों में, चाहे छोटा हो या बड़ा, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अब वो हमारे बीच से जाएंगे। कल सवेरे उनकी फ्लाइट है। भाई करम सिंह जी और उनके साथी उनकी बड़ी भावभीनी विदाई कर रहे हैं। हम सब हाथ जोड़ करके बड़ी भाव हृदय से नमन बंदन करेंगे कि डॉक्टर साहब बार बार साउथ में आए, हमारा मार्गदर्शन करें, प्रेम की वर्षा करें। और डॉक्टर साहब कभी पैसे की बात नहीं करते। डॉक्टर साहब कहते हैं कि केवल साउथ में गायत्री मंत्र घर घर जाना चाहिए। इसी भाव से हम सब संकल्प करते हैं कि घर घर गायत्री मंत्र पहुंचाएंगे। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हमारे साउथ के बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने संपूर्ण जीवन दिया है, हीर सिंह जी राजपुरोहित, उनका जन्मदिन है। वो भी अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। हर गांव गांव में जाते हैं, विशेषकर राजपुरोहितों में बड़ा काम करते हैं। थाली आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सब भाई बैठे रहेंगे, डॉक्टर साहब से विदा लेंगे। हाथ जोड़कर दिव्य चेतना को जिनके दर्शन उनके द्वारा करते हैं, हाथ जोड़कर नमन बंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। बार बार प्रार्थना करते हैं कि साउथ के चाहे छोटे कार्यक्रम हो या बड़े, बार बार हमारे बीच में डॉक्टर साहब आते रहें, अब हमें प्रोत्साहन देते रहें, अपना प्रेम देते रहें। उनके ज्ञान को पा करके हम निरंतर प्रगति की ओर चलें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ें, प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आप सब शांति से बैठे रहें। मोहन भाई अभी आपको सूचनाएं देंगे, फिर शांति पाठ होगा। बैठे रहें, उठे नहीं, सूचनाएं सुन लें। எல்லோரும் நாளை காலை நடைபெறுகின்ற இந்த பூர்ணாகுதிக்கு காலையில் 7 மணி முதலே வந்துவிட வேண்டும். 8 மணிக்கு அந்த பூஜைகள் ஆரம்பித்து மதியம் 12-1 மணிக்குள் பூர்ணாகுதி நடைபெறும். எனவே பக்த கோடிகள் தங்களுடைய உற்றார் உறவினர் நண்பர்களோடு அக்கம் பக்கத்தாளில் உள்ள தங்களுடைய உறவினர்களோடு வந்திருந்து இந்த யாகத்தை சிறப்பித்து தரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்பொழுது இந்த யாகம் முடிந்த பிறகு, சாந்தி பாட் முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு அங்கே போஜனம் தயாராக இருக்கிறது. எல்லோரும் அந்த பிரசாதத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். யாரும் பிரசாதம் வாங்காமல் செல்ல வேண்டாம். எல்லோரும் நீங்கள் இந்த காயத்ரி பிரச்சார சமிதி, காயத்ரி பரிவாரினுடைய மெம்பராக சேர்வதற்கு இலவசமாக உங்களுடைய போன் நம்பர், உங்களுடைய பெயர், அட்ரஸ் கொடுத்தா போதும், நீங்க மெம்பர் ஆயிடலாம். அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற புக் ஸ்டால்ல இருக்கிற புத்தகங்கள், சாகித்ய அந்த புத்தகங்களை எல்லாம் நீங்கள் விலைக்கு வாங்கி கொண்டு செல்லலாம். வருகிற 2015ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து 9ஆம் தேதி வரை சாந்தி குஞ்ச் ஹரித்வாரில் நமக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய சிபிர் நடக்க உள்ளது. அந்த சிபிரில் எல்லோரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். शांति पाठ ओंकार जी। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। भोजन की व्यवस्था है, बूंदी के प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद लेके जाएं, भोजन लेके जाएं। यहाँ से जय घोष हो रहा है, कृपया। போஜனம் அருந்தி விட்டு தான் செல்ல வேண்டும். ஜெயகோஷம் முடிந்த பிறகு போஜனத்திற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. எல்லோரும் ஜெயகோஷம் முடிந்த பிறகு போஜனம், அந்த பிரசாதம் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும்படி பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். காலையில 8 மணிக்கெல்லாம் யாகம் ஆரம்பிச்சிரும். அதனால காலையில எல்லாரும் அவங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களோடு வந்திருந்த வேண்டும். இப்பொழுது ஜெயகோஷம் பாடப்படுகிறது. जय घोष। எந்த சார்ஜும் கிடையாது. நாளைக்கு யாகத்துல கலந்துக்கிறதுக்கு எந்த விதமான பணத்தொகையும் நாளை கிடையாது. குடும்பத்தோடு எல்லாரும் வந்துருங்க. लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी।
गायत्री माता दौड़ी आएगी, गायत्री माता दौड़ी आएगी।